सोशलॉजी सेगमेंट्स में हमारा वेलकम है आप लोगों का, ठीक है। एंड सोशलॉजी एज ए डिसिप्लिन कल हम लोग कर रहे थे। इसमें बताओ, इसमें कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक किया था ना, यहीं तक हुआ था ना कल। सी द प्रीवियस यस्टरडे क्लासेस, इकोनॉमिक चेंज, वॉयेज एंड डिस्कवरी इन पॉइंट्स बी इलेबरेटेड, ठीक है ठीक है। आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट लिखना है, यूरोपियनाइजेशन, यूरोपियनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट डाउन द पॉइंट। दुनिया का यूरोपीकरण, यूरोपियनाइजेशन, अंडर इट एक हेडिंग लिखो, डैश डाल के लिखो। ये हेडिंग लिखा, ये यूरोपियनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद डैश डाल के इसके अंदर जो मैं बोलता हूं उसको लिखो। इन मॉडर्न टाइम्स the comma in the colonialism comma efforts was made to Europeanize EUROPENISE Europeanize the entire world full stop. England mainly tried to flourish European values comma culture and religion around the world. Full stop. Most of the countries were colonies. Most of the countries were colonies of England. Full stop. Therefore, England tried to establish England tried to establish political and social unification of different countries. बस ठीक है। पैराग्राफ चेंज। नाउ राइट साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। हेडिंग चेंज करो, लिखो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ठीक है।
अंडरलाइन करो, डैश दो, जैसे मैं कहता हूं वैसे लिखना। In the 15th and 16th century, in the 15th and 16th century, the great scientist, Copernicus, Kepler, Galileo, Robert Boyle, Newton, and Darwin contributed a lot to scientific revolution. Full stop. इसी में लिखना है the inventions and discoveries introduced sweeping socio-economic change in society. It also contributed to industrialization and industrial revolution. Full stop. ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट लिखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हेडिंग चेंज करो, लिखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं शॉर्ट नोट्स वाले, सो थोड़ा सा मैं डिटेल्स में इसको लिखा देता हूं। इन 1789 मैं जैसे उसको वहां नहीं मिलेगी, मैं बाद में लिखा हूं, मैं जैसे बोलता हूं वो अकॉर्डिंग लिखिए। इन 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन introduced socio-economics and political change not only in France but other parts of the world. The French society in the 17th century was divided into
was divided into three estate, ESTAT, estate. First, clergy, first clergy, ब्रैकेट में लिखना religious head. Second, nobility. Second, nobility. King or big bureaucrat. And third, peasants or artisans. Third, peasants or artisan. The first two estate were the ruling class. They lived in luxury. Full stop. They were in minority. And governing elite. Full stop. On the other hand, majority of peasantry and artisan classes faced poverty, unemployment, social distress, inequality and exploitation. Paragraph change. अब paragraph change करना. The main theme of French Revolution themes कर दो, S लगा दो. Main themes of the French Revolution were equality, justice, fraternity, and democracy. The common people wanted to establish an egalitarian society. Stop. They were against the monarchy and power of Pope, Pope,
and capitalist class and capitalist class. Paragraph change. The voices of French Revolution, the voices of French Revolution spread around the world, and it largely influenced the socio-economic and political system of the world. In most of the countries, people started demanding their social, economic, and political rights. Let's stop. Paragraph change. The preamble of Indian Constitution is also inspired by ethos of French Revolution. In Indian Constitution's preamble, the word social justice, equality, and fraternity are inspired by French society. अब देखो प्रोसेस समझ लो। फ्रांस की क्रांति क्या हुई थी? फ्रांस में जो 1789 में एक बहुत बड़ा क्रांति हुई थी, सच टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन दुनिया में बहुत तहलका मचाया। इस क्रांति क्यों हुई थी कि फ्रांस के 80% जनता, जो पीजेंट्री क्लास का ये वर्ग जो था, पीजेंट और आर्टिजन, उनके पास भूखमरी थी, गरीबी थी, अशिक्षा था। और ये जो दो वर्ग हैं, ये जो क्लेयर्जी यानी धार्मिक गुरु और नोबिलिटी यानी राजा और बड़े बड़े अफसर, ये लोगों के पास सारा पैसा, पावर, अधिकार सब इन्हीं दो वर्गों के पास, ठीक नहीं? फ्रांस में क्या, लोगों को ब्रेड खाने के लिए नहीं मिलते थे,
मतलब लोगों को खाने की भोजन नहीं मिल रही थी। कौन लोगों को? तो इन लोगों को, क्या कहते हैं, पीजेंट क्लास के लोगों को। ये लोग कितना थे? लगभग 80% पूरे फ्रांस की जनसंख्या का थे। 80% लोग डिस्ट्रेस में थे। और ये राजा और जो अफसर और जो क्लेयर्जी या पूंजीपति लोग, ये 20% थे। ये बहुत ज्यादा लग्जरी में रह रहा था, टैक्स बहुत ज्यादा लगा देते थे, लोगों को रोजगार नहीं था। मतलब फ्रांस में बहुत तबाही थी, बहुत ज्यादा रिसेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। अब ये लोगों ने आंदोलन किया। फ्रांस का जो क्रांति हुआ ये लोग करने वाले थे, पीजेंट्री क्लास और आर्टिजन क्लास। इनकी डिमांड क्या थी कि तुम मलाई कोफ्ता खाओ, मेरे लिए रोटी भी नहीं है। तो इन्होंने इनके ये जो सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे इनको कोई अधिकार नहीं, राइट नहीं, इनको कोई स्टेटस नहीं, इन लोगों ने इन लोगों के खिलाफ आंदोलन किए। इनका डिमांड क्या था? इक्वालिटी, कि तुम 20% लोग जो हो, तुम कौन हो? राजा या मंत्री, किंग। उस टाइम तो फ्रांस का जो है ये था, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, बहुत लोग मारे गए। वहीं से दुनिया में ये मैसेज आया कि बिल्कुल फ्रांस की क्रांति में आवाज उठी, दुनिया में इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। फ्रांस की क्रांति ने हमें जस्टिस का, न्याय क्या है, इन लोगों के साथ अन्याय होता था, तो जस्टिस का जो अवधारणा है, सोशल जस्टिस का, यहीं से आया। क्या समाज में आज किसी भी समाज में यदि एक मेजोरिटी ऑफ लोग, यदि उनकी रोटी कपड़ा मकान का इशू है और बहुत सारे लोग जो है पावर वाले लोग अच्छे लाइफ स्टाइल लीड कर रहे हैं, तो उस समाज में एक दिन क्रांति होगी। तो फ्रांस की क्रांति से जो आवाज निकली वह अमेरिका, ब्रिटेन, पूरी दुनिया के समाज को सोचने के लिए बाध्य कर दिया। हमारे संविधान के प्रियम्बल में जो जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है, वह फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है नहीं? तो फ्रांस की क्रांति ने दुनिया के सोशल सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में और पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव का संकेत दिया, मैसेज दिया। अमेरिका पहला कंट्री बना जो डेमोक्रेटिक रास्ते पे गया, उसने इक्वालिटी के रास्ते पे गया। उसके बाद धीरे धीरे हर एक कंट्री फ्रांस की क्रांति से जो निकला हुआ स्लोगन था, जो मैसेज थे, उसको अपने अपने, उसके बाद देखो अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, हमने आजादी के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। सब देश में, दुनिया के 70 मुल्कों को अंग्रेज ने, ब्रिटिश ने क्या कहता था, गुलाम बना रखा था। हमारा भारत ही गुलाम नहीं था ब्रिटिश के चंगुल में, अमेरिका के 14 स्टेट को गुलाम बना रखा था। उस सब को, उस बेरियों से निकाल करके यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका बनाया गया, कि नहीं? उन्होंने पूरे दुनिया में अपना चाहता था कि इंग्लैंड जैसा कल्चर, वैल्यू पूरे दुनिया में हम फैलाएं। क्रिश्चियन मिशंस को लगाया, क्रिश्चियन मिशनरी धर्म परिवर्तन करवाते थे। तो फ्रांस की क्रांति एक ऐसा था, वह एक सोशल रिवॉल्यूशन था, वह एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन था। लोगों को आर्थिक अधिकार, रोजगार, अर्निंग मिले, उसके लिए था। वह एक पॉलिटिकल चेंज के लिए था कि राजा का ही पावर क्यों, कुछ लोग पावरफुल क्यों, पावर एलिट के विरुद्ध था कि तुम ही लोग पावर को कैप्चर किया, बाकी लोग डेमोक्रेटिक व्यवस्था लो, ही नहीं? तो फ्रांस की क्रांति ने, ध्यान रखना, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे चेंज लाया। अब क्वेश्चन तुमको क्या दे देगा? क्वेश्चन लिखो, यहां से क्वेश्चन लिखो जो मैं लिखाता हूं, जो यूपीएससी में आए हैं। सोशियोलॉजी इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सोशियोलॉजी इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। डैश डाल के लिखो, डिस्कस। सोशियोलॉजी इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है? दूसरा, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन सोशियोलॉजी। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ऑन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। Discuss the impact of French Revolution on emergence of sociology. ये दूसरा क्वेश्चन, 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स में आपको लिखने हैं क्वेश्चन। Discuss the impact of French Revolution on emergence of sociology. अब देखो, इसको ऐसे जोड़ो कि सोशियोलॉजी, अगस्त कॉम्ट जैसे जो पर्सनैलिटी हैं, जो 1838-39 में सोशियोलॉजी की नींव रखी, उसमें एक बहुत बड़ा जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रोल है। कैसे?
फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ने नए सोसाइटी का नींव रख दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, लेबर की पीजेंट्री की प्रॉब्लम था, एक हैव्स और हैव नॉट्स की जो दूरी है उसमें इक्वलिटी की बात की है। गरीब अमीर को एक कॉमन लाइफ की ओर एक ले जाने की बात की है। तो ये चीजें दुनिया के देशों को अपीलिंग लगा। हर एक समाज में, हमारे यहाँ भी था, अमेरिका में भी था, हर एक दुनिया के देशों में था। तो सोशल लेवल पे सब दुनिया के बहुत सारे लोग चाहते थे कि परिवर्तन हो, इक्वालिटी है, जस्टिस है। आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली देखा जाए तो यह एक सबको पैसे का, नौकरी का, एम्प्लॉयमेंट का, पैसे कमाने का, अच्छे लाइफ स्टाइल लीड करने की राइट है। हर एक व्यक्ति को इतना इनकम हो कि वो अच्छे से लाइफ लीड कर सके। गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो आर्थिक रूप से देखा जाए तो आर्थिक रूप से वो सब अपना अधिकार चाहते थे, नहीं, संसाधनों पर में, सरकार के संसाधनों पर में बराबर का अधिकार चाहती थी, नहीं, टैक्स के पैसे से राजा रजवाड़े या नोबिलिटी बहुत ऐसे करता था। और तीसरा पॉलिटिकल चेंज था। वो चाहता था कि राजा रजवाड़े का सिस्टम मोनार्कियल खत्म हो और एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें कि हर एक जनता का पॉलिटिकल नागरिकता का राइट मिले, सिटीजनशिप का राइट मिले, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बने, डेमोक्रेसी बने, जनता के अनुकूल सरकार बने, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं हो। तो पॉलिटिकल चेंज के लिए था। तो ये तीन चीज पूरे दुनिया में इसको लेकर के एक आंदोलन होने लगे, अलग अलग देशों में आंदोलन होने लगे। तो समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने लगा, आंदोलन होने लगे, परिवर्तन की डिमांड होने लगा। यही चीज अगस्त कॉम्ट के दिमाग में था कि ये जो परिवर्तन जो आ रहा है सोशल इकोनॉमिक, इसको अध्ययन करने वाला कोई विषय होना चाहिए। और उसके लिए सोशियोलॉजी का विकास किया उन्होंने, कि सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय होगा जो बदलते हुए समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा। चेंजिंग सोसाइटी, सोशियोलॉजी विल बी द स्टडी ऑफ चेंजिंग सोसाइटी। तो इसमें इन सब चीजों को मिला करके आपको आंसर्स जनरेट करने हैं इसके, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंच, सोशियोलॉजी इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या होगा, ये नहीं सब बात, तो दोनों क्वेश्चन में एक ही बात लिखना है, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके वो देता है। मतलब यही है कि फ्रांस की क्रांति ने सोशल इकोनॉमिक दुनिया में इतना चेंज लाया कि अगस्त कॉम्ट जैसा विद्वान ने एक विषय का निर्माण किया जो बदलते हुए तीव्र रूप से जो सोशल चेंज आ रहा है उसका अध्ययन करेगा। सोशल चेंज आया, इकोनॉमिक चेंज आया, पॉलिटिकल चेंज आया, इसको कौन अध्ययन करेगा? इसको अध्ययन करेगा सोशियोलॉजी। इसीलिए सोशियोलॉजी का विकास जो है हुआ, उन्होंने नींव रखी। इसके बाद सोशियोलॉजी पहली बार अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने लगा, फिर ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में गया और धीरे धीरे सोशियोलॉजी एक विषय के रूप में स्टैब्लिश हो गया। सो फ्रांस की क्रांति सोशल चेंज की दिशा में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। यह सोशल चेंज ही नहीं था, यह इकोनॉमिक चेंज था, यह पॉलिटिकल चेंज भी था। फ्रांस की क्रांति हर एक जगह पढ़ाया जाता है। यह 1789 में हुआ था। यह बहुत बड़ा एक यादगार है आज भी, नहीं, फ्रांस की क्रांति। इज इट राइट? तो ऐसे क्वेश्चन फिर आगे लो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन फ्रांस। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसी का पार्ट है, इसी में लिखो। ये फ्रांस की क्रांति से ही, ये क्रांति जो आया इसके पीछे क्या क्या चीज था। फ्रांस में पहले लोग उतने कॉन्शियस नहीं थे, अवेयर नहीं थे, ये नहीं। अब ये पॉइंट लिखना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन फ्रांस। मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखा, स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ नाम का एक बुक लिखा, इसके लेखक थे मॉन्टेस्क्यू, बहुत बड़े फ्रेंच फिलोसोफर थे, ठीक है। ये सब आप जब लिखोगे तो वहां सब्जेक्टिव लिखोगे, यहां ये सब आपको टेबलेट का काम करेगा। इन चीजों को जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखना है तो इन सब चीजों को लिखना है। लॉक जो थिंकर्स है, इन्होंने इंडिविजुअल राइट की बात की है। किसकी बात किया? इंडिविजुअल राइट। इन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। लॉक का नाम सुनिए, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, चिंतक थे। वॉल्टेयर ने क्या बात कहा? वॉल्टेयर ने अपने बुक में लिखा कि हर एक व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी मिलनी चाहिए। उस समय में नॉर्थ कोरिया जैसे था फ्रांस, कोई बोलेगा राजा के खिलाफ तो फांसी पे लटका दो, राजा के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था।
तो वोल्टेयर ने हिम्मत किया और अपने पेपर में, अपने बुक में, वर्क में लिखा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार हर एक लोगों का। आज हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, हमारा संविधान दिया है, बोलने की आजादी। रूशो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है। नहीं, ये सब जो विचार आया ना, ये सब जो विचार आया, ये सब विचार लोगों को अच्छा लगा, इनके विचार अच्छे लगे, अपीलिंग लगा, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, पीपल इन विचारों से जुड़ गया और वो चाहते थे कि हाँ, हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे। सो यू शुड गिव द रेफरेंसेस ऑफ मॉन्टेस्क्यू, लॉक, वोल्टेयर, रूसो। ओके, दीज थिंकर्स कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, बोलते हैं इसको, बौद्धिक क्रांति पहले आई। अब बौद्धिक लोगों का जब बौद्धिक स्तर बढ़ा तो लोग विरोध करने लगे कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, लोगों की दिमाग खुल गया। तो ये जो 4-5 थिंकर्स थे ना, फ्रांस के डेवलपमेंट में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दे प्लेड ए वेरी वेरी डिफरेंट रोल बाय देयर इंटेलेक्चुअल इनसाइट। उन्होंने इंटेलेक्चुअल बौद्धिक लीडरशिप दी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब यहां देखो, दो ट्रेडिशन, फ्रांस के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में दो ट्रेडिशन आया, ये भी लिखना, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव ट्रेडिशन। राइट डाउन, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव ट्रेडिशन। ठीक है, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव ट्रेडिशन। अब देखो, रेडिकल का मतलब होता है चेंजर, कंजर्वेटिव का मतलब होता है नो चेंजर्स। ठीक है नहीं, रेडिकल मींस चेंजर, कंजर्वेटिव मींस नो चेंजर। ठीक है, अब ये रेडिकल्स चाहते थे कि समाज में, रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल्स ये लोग थे, ये लोग चाहते थे समाज में परिवर्तन हो। इनकी जनसंख्या कितना है? फ्रांस का सोसाइटी 2 वर्ग में बटा था। रेडिकल ग्रुप जो सबसे ज्यादा था, मतलब लगभग 80% जनसंख्या रेडिकल्स था, जो बदलाव चाहते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 80% जनता ये कौन थे? ये रेडिकल्स में थे, पीजेंट और आर्टिजन, कॉमनर्स, कॉमन लोग। कंजर्वेटिव में वो लोग थे जो क्लियरली, जैसे पोप हो गया, चर्च का जो पोप होता है, इसमें नोबिलिटी हो गया, राजा और उनके जो मंत्री या बड़े बड़े जो अफसर हो गए वो हो गए। वो चाहते थे कि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग राजा जो बनाया गया व्यवस्था, ट्रेडिशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रशासन चले, चीजें रहे। और रेडिकल्स चाहता था कि नहीं, ट्रेडिशन, परंपरा, राजा, पोप, इनकी पावर छीनी जाए और डेमोक्रेसी, इक्वलिटी ये आ जाए। ठीक नहीं? तो ये रेडिकल और कंजर्वेटिव के बीच लड़ाई था। जीत किसकी हुई? रेडिकल्स की। फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद जो परिवर्तन आया, उसमें रेडिकल्स लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया और वो एक नए, इन सब चीजों को समाज में लागू करने के लिए फिर संविधान बना, ये नहीं, और उस संविधान में उनके वहां कानून बने और उस कानून में इन सब को लागू किया गया। तो बहुत मार काट के बाद जो संविधान कानून बना, बिल ऑफ राइट्स बना फ्रांस में। तो बिल ऑफ राइट्स प्रोवाइडेड ये सब फ्रीडम दिया, राइट दिया, अधिकार दिया। तब लोगों को, हमारा ब्रिटिश कैसे बना रखा था? बोलने की आजादी नहीं थी हमारे पास, सच्चाई छापो तो पकड़ के जेल में बंद कर देता था, नहीं? तो ब्रिटिश जो हमारे यहाँ अन्याय कर रहा था ना, वह फ्रांस के जो रूलर थे अपने लोगों पे अन्याय कर रहा था, नहीं? तो ये दो ट्रेडिशन देखना, रेडिकल ट्रेडिशन और कंजर्वेटिव ट्रेडिशन के बीच जो झगड़ा हुई, उसके बाद जो बिल ऑफ राइट्स आया, उसमें एक ऐसा व्यवस्था दी गई जिसमें कि कॉमन लोगों को अधिकार दिए गए। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चीजों को देखेंगे तो ये फ्रांस की क्रांति बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था जो समाज में परिवर्तन लाया। इन्हीं परिवर्तनों के कॉन्टेक्स्ट में सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट आगे बढ़ा। अगर ये अगस्त कॉम्ट जो था फ्रांस का रहने वाला था, उन्होंने कहा कि इतना जो समाज में उथल पुथल है, इसका अध्ययन कौन करेगा? तो सोशियोलॉजी विषय बना डाला। सोशियोलॉजी का फिर लिखना है कि अमेरिका में पढ़ाई हुई, फिर ब्रिटेन। सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन बन गया, है नहीं? ऐसे करके जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स में आप इन सारे पॉइंट्स को सब्जेक्टिव तरीके से आपको मेंशन करना है। हेडिंग लिखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन
अब क्वेश्चन ऐसे आएगा यहां से, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव समाज शास्त्र के विकास पर, उद्भव पर क्या पड़ा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या परिवर्तन लाया कि सोशियोलॉजी के विषय बनने में कोऑपरेट किया। ये अगस्त कॉम्ट को लगा कि वही सोशियोलॉजी जैसा विषय होना चाहिए। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो टाइम था, टाइम फ्रेम जो था वह ये था, 1760 से लेकर के 1880 के बीच पूरी दुनिया में न्यू न्यू चीज आने लगी, न्यू टेक्निक आने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। मतलब लोग जो मैनुअली प्रोडक्ट करते थे, अब मशीन, कपड़ा पहले मैनुअली बनता था, छोटे छोटे टेक्नोलॉजी से बनते थे, अब बड़े बड़े मशीन से कपड़े बनाए जाने, रेल इंजन का चल गया, टेलीफोन आ गया, बल्ब आ गया। जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ था वह अब दिख रहा है औद्योगिकरण में। अब इसमें क्या हुआ, ये सोसाइटी को प्रभावित किया। मान लो जब आदमी खेत में काम करता था, अब खेत से वह बाहर फैक्ट्री में जाके काम करने लगे, अब शहर में जाने लगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटी बसने लगे, बड़े बड़े उद्योग लगने लगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, लोगों का परिवार, वैल्यू, रिलीजन, उनको देखने का नजरिया, उनमें परिवर्तन आने लगा, है नहीं। यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रभाव सोसाइटी पर पड़ा। इसके साथ साथ हुआ लेबर लोगों का कंडीशन जो है, एक आया मुद्दा कि लेबर लोग को जो खेत में काम करते थे उद्योग में आने लगी, तो लेबर से रिलेटेड लॉ बनने लगे, लेबर वेलफेयर की बात होने लगी, लेबर का शोषण भी होने लगा। हमारे यहाँ से लेबर दूसरे दूसरे देश ले जाते थे इंडस्ट्री में काम करवाने के लिए, है नहीं। तो एक नया एम्प्लॉयमेंट, नए सोसाइटी का निर्माण हुआ, और इससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण समाज था, रूरल एरिया था, वह प्रभावित होने लगा। उद्योग में जब बहुत सारे एरिया के लोग एक जगह काम करने लगे, तो वहां से वह कल्चरल चीजें, खान पान से संबंधित चीजें, शेयरिंग बढ़ने लगी। पहले लोग एक 40 किलोमीटर के दायरा में रहता था, अब धीरे धीरे रेलगाड़ी आई तो दूर जाके काम करने लगे। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया कि लेबर, काम, इन सब को प्रभावित किया, ये काम करने के तरीके को प्रभावित किया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होता था, पहले खेत जमीन होता था, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो कैपिटल, पूंजी, पैसा, बैंकिंग सिस्टम का विकास हुआ। तो एक प्रॉपर्टीज जो है ना, वो रियल अब जमीन नहीं रह गया। आज के डेट में प्रॉपर्टीज आज सिर्फ जमीन के वैल्यू में हम नहीं देखते हैं, तुम्हारे पास कितना पैसे का एसेट है, कैपिटल के टर्म में हम प्रॉपर्टी को देखते हैं। अर्बनाइजेशन, जब औद्योगिकरण आया तो इन्होंने अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया, नगरीकरण को बढ़ावा दिया। ऑलवेज बड़े बड़े भारत में सूरत, मछलीपट्टनम, हल्दिया, कोलकाता, बॉम्बे, ये सब ब्रिटिश काल में इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में डेवलप हुआ। सो अराउंड द वर्ल्ड क्या हुआ कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज और अर्बन, लोग अब शहर की ओर आने लगे, क्योंकि इंडस्ट्री गांव में रहता नहीं था, तो लोग जहां जहां इंडस्ट्री था वहां वहां शहर बस गए। बॉम्बे आज कैपिटल क्यों है कि बॉम्बे और कलकत्ता, ये दो जगह ब्रिटिश का बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, वहां से वह समुद्र के मार्ग से सामान ले जाते थे। तो दिस इज की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ, ये अर्बनाइजेशन बढ़ा, ज्यादा से ज्यादा लोग शहर की ओर आने लगे, शहरी जीवन जीने लगे। तो उनकी कल्चर भी, गांव की कल्चर जो था वो बदला, कपड़े पहनने का तरीका बदला, अंग्रेजी बोलने लगे। जो लेबर लोग को काम खेत से अब मशीन पे काम करना पड़ रहा है, दूसरे तरह के नेचर ऑफ वर्क बदल गया, अब वैल्यू बदल गया, फैमिली में चेंज आने लगे। तो ये दोनों चीजें ने परिवर्तन किया समाज को काफी। औद्योगिकरण से सोसाइटी में काफी कुछ बदलाव आया। टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट्री सिस्टम, अब प्रोडक्शन जो है, पहले हमारे यहाँ मैनुअली कपड़े बनाते थे, गांधी जी का जो खादी चरखा है नहीं, ये मैनुअली कपड़े बनाते थे। अब बड़े बड़े मशीन से कपड़े बनाए जाने लगे, तो छोटे छोटे उद्योग खत्म हो गए ये बड़े इंडस्ट्री आने से, है नहीं। तो इससे क्या हुआ कि एक अच्छा हुआ कि एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ, लेकिन नेगेटिव ये हुआ कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। जो मैनुअल वर्किंग करते थे, कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो उनको उनके प्रोडक्ट, खादी जैसे बैठ गया भारत में। अब लोग हैंडलूम के सस्ते कपड़े पहनने लगे, खादी का कपड़ा महंगा बिक रहा था, चूंकि बनाने में काफी समय लगता था, है नहीं।
तो ये चीजें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इंग्लैंड में आया, ये कहां आया? इंग्लैंड में आया, और इससे दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। देखो इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड introduced social, economic and political change, around the world. Industrialization diffused to the other countries, mostly the colonial one, mostly the colonial one. It contributed to change in nature of work, comma, mode of production, comma, value and cultural change, as well as urbanization, We'll stop. The trade and commerce increased, and it laid the foundation stone, increased, and it laid the foundation stone of capitalist society. From subsistence economy to surplus economy, from subsistence economy to surplus economy, comma, from a small market to big market, comma, it also contributed to rapid development of transport and communication, full stop. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फुल स्टॉप। ठीक है, अब आओ, अब देखो इमरजेंस ऑफ, ये तो हमने बैकग्राउंड हुआ है नहीं, अब हेडिंग डालो इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, हेडिंग लिखो इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी।
इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। ये पॉइंट लिखना है पहला, इनलाइटमेंट थिंकर्स फॉलोड पॉजिटिविज्म। इनलाइटमेंट थिंकर्स फॉलोड पॉजिटिविज्म। Reason, they mostly focus on reason and logic. Philosophy of history, Comte and Marx. Philosophy of history, Comte and Marx. Poverty is social, not natural. Biological theory of evolution, डार्विन का था। एंड सर्वे ऑफ सोशल कंडीशनिंग। अब इस पॉइंट क्या है, इस पॉइंट में समझना है हु आर द इनलाइटमेंट थिंकर्स। वो थिंकर्स जिन्होंने नए नए विचार लेके आई। कार्ल मार्क्स, हीगल, डार्विन, नए नए शोध किए सोशल साइंस में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, नया नया थ्योरी लेकर के आए, नई सोच लेके आए, उसको बोलते हैं इनलाइटमेंट थिंकर्स, जो नए विचार लेकर के आई। इमैनुअल कांट जैसे फिलोसफर, है नहीं। तो ये जो इनलाइटमेंट थिंकर्स था ना, इन लोगों में वैचारिक परिवर्तन को, सोशल चेंज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। अब इनका बेस क्या था? दो चीज, रीजन और लॉजिक। अब ये कहता था कि भाई ये मोनार्की के खिलाफ लिख दिया, ये धर्मगुरु का जो पावर है उसका विरोध किया। इन्होंने फिलॉसफी ऐसा दिया कि भाई राजा का ही पावर क्यों हो, ऐसा क्यों नहीं हो, व्यवस्था तय हो। तो इनका दो चीज था, इन्होंने रीजन की बात किया इमैनुअल कांट, और लॉजिक की बात की, ठीक है। फिर आया फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। अब कॉम्ट का मैंने आप लोगों को बताया है। कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सिद्धांत आया। अगस्ट कॉम्ट जैसे जो व्यक्ति थे उन्होंने अलग अलग ढंग से अपनी फिलॉसफी दी। अब पहले क्या था, अब देखो इसमें यही चीज अंतर है। पहले हमारे समाज में, हमारे भारत में भी था, दुनिया में भी था, कि यदि आप गरीब हो तो ईश्वर ने आपको गरीब बनाया। हम अमीर हैं तो ईश्वर ने मेरे को अमीर बनाया। गरीबी अमीरी ईश्वर का है, आपका उसमें कोई बस नहीं है। इन लोगों ने कहा नहीं, हमको मनुष्य, महिला, पुरुष और महिला ये ईश्वर ने बनाया है, लेकिन गरीब ईश्वर नहीं बनाया। सोशियली क्रिएटेड है ये। समाज में यदि हम गरीब हैं, किसी ने कहा कि इफ यू बॉर्न पुअर इट इज योर फेट, इफ यू डाई पुअर इट इज योर मिस्टेक्स। तो गरीबी को इन लोगों ने कहा कि यह सोशल नेचुरल नहीं है। गरीबी समाज की व्यवस्था के कारण बहुत सारे लोग गरीब बना दिए गए। सोशल सिस्टम ऐसा बना दुनिया का कि बहुत सारे लोग गरीबी के लाइन के, उस सोशल सिस्टम यदि बदल जाए तो बाकी लोग गरीबी रेखा के बाहर आ जाएंगे। इन लोगों ने ऐसी ऐसी फिलॉसफी दिया, ऐसे ऐसे बुक लिखे कि बोला कि गरीबी या समाज में जो भी प्रॉब्लम है उसका सोशल रीजन है, नॉट कि प्रकृति ने, गॉड ने, ईश्वर ने किसी को ऐसे बना के नहीं भेजा। धर्मगुरु जो कहते हैं या जो पोप कहते थे, इससे उनको लगा कि हमारा जो आसन है, सिंहासन है, वह हिल रहा है। तो अपनी इन्होंने वैचारिक क्रांति एक तरह से था। और उसके बाद क्या हुआ, बायोलॉजिकल थ्योरी है। बायोलॉजिकल थ्योरी ये डार्विन का था। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का एक बुक लिखा। डार्विन के बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को उन्होंने बताया कि एक छोटा सा अमीबा जीव आज लाखों सेल वाला मनुष्य के रूप में कैसे विकसित हो गया। इतने सारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज की बात की है, इवोल्यूशन की बात की है। इसी को सोशियोलॉजी में लाया डार्विन, ये हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने सोशल डार्विनवाद का सिद्धांत दिया, सोशल डार्विनियनिज्म, नहीं। इन्होंने बोला कि समाज का भी जो उद्भव है, इमरजेंस है, ऐसे ऐसे हुआ है। जैसे एक मनुष्य, छोटा बच्चा बड़ा आदमी बन जाता है, समाज भी धीरे धीरे पेस्टोरल एग्रीकल्चर से होते होते इंडस्ट्रियल और आज इस ओर जा रहा है। उसने अपने तरीके से सोशल डार्विनियवाद को
विकासीय सिद्धांत इवोल्यूशनरी थ्योरी के माध्यम से एक्सप्लेन किया। ठीक है, सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा दी है। उसके बाद कई सर्वे हुए, समाज के ऊपर में कई सर्वे आया, उनका रिपोर्ट आया, सब एक मॉडर्न आधुनिक वैज्ञानिक रूप लिए हुआ था। ये सब लोगों को अपीलिंग लगा और इन सब के कारण समाज में उथल पुथल मचा। सब लोग बदलाव चाहते थे, रेडिकल्स बहुत ज्यादा, हर एक जगह आंदोलन होती थी कि पुराने सिस्टम के विरुद्ध, ट्रेडिशन के विरुद्ध, राजा के पावर के विरुद्ध, मोनार्कियल सिस्टम के विरुद्ध पूरे दुनिया में एक विद्रोह छिड़ गया। नहीं, तो इसी के कारण क्या था, इन सब से प्रभावित होकर के अगस्त कॉम्ट महोदय को ऐसा लगा कि एक विषय होना चाहिए जो इन बदलते हुए सामाजिक चीजों का अध्ययन करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगस्त कॉम्ट ने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की नींव रखी और ये चेंजिंग सोसाइटी का अध्ययन करेगा। ये समाज में बदलाव क्यों आया, कैसे आया, इसके नेचर क्या है, इन चीजों के ऊपर में फोकस करेगा सोशियोलॉजी। तो यही दिस इज द रीजन कि एक सोशियोलॉजी एक विषय के रूप में अगस्त कॉम्ट महोदय ने इसको लाया और इसको आगे बढ़ाया, है नहीं? ये राइट? हाँ। कौन? ये सर्वे बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये नहीं जानते हो? अब ये क्या है जानते हो? आप तुमको डिटेल से बता देते हैं। अमीबा नाम सुने? अमीबा, अमीबा क्या है? कभी पढ़े हो? बायोलॉजी का कोई लड़का है? साइंस का? यूनिसेल्यूलर, बिल्कुल सही। यूनिसेल्यूलर का एक सेल जो आंख से नहीं दिखेगा। सबसे पहले इस पृथ्वी पर में एक सेल वाला एक छोटा सा कीड़ा आया। क्या आया? डार्विन ने यही बात कहा है। वह एक सेल वाला ऐसे दिखेगा नहीं, आंख से दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें जान है। वही एक सेल वाला जीव धीरे धीरे बड़ा कीड़ा बना और बना और बना, और धीरे इतने जो जीव जंतु बायोलॉजिकल चीजें जितनी भी है वही एक सेल से। आज हमारा शरीर में कितना है? लाखों सेल हैं? हमारे शरीर, आज हम इतने बड़े प्राणी बन गए। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहता है बच्चे, आज हम आप कैसे बने? एक छोटा सा XY क्रोमोसोम फर्टिलाइज होकर के हमारे जैसे इतने बड़े शरीर वाले लोग बन जाते हैं। एक बीज एक बीज धीरे धीरे कितना बड़ा पेड़ का आकार ले लेता है। तो इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सोशल डार्विनिज्म क्या है? डार्विन ने जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दिया उसको समाज शास्त्र में लाने वाला जो थिंकर्स था वह था हर्बर्ट स्पेंसर। उसने सामाजिक डार्विनवाद, सोशल डार्विनियनिज्म की अवधारणा दी है। सोशल डार्विनियनिज्म क्या है? जिस तरह से हमारा शरीर छोटा से बड़ा हो जाता है उसी तरह से समाज पहले क्या था? ऐसे नहीं था। समाज जंगल में रहता था, फिर छोटी सी झोपड़ी बनाई, फिर एक घर बनाया, फिर एक गांव बसाई, खेती करता गया, फिर उससे धीरे धीरे बढ़िया घर में रहने लगा, अच्छे कपड़े पहनने लगे, फिर धीरे धीरे बड़ी एग्रीकल्चरल फ्यूडल सोसाइटी आया, फिर औद्योगिक समाज आया, फिर आज हम हेलीकॉप्टर हवाई जहाज तक चले गए। तो हमारा जो समाज का जो विकास हुआ है ना, वो भी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, एक मतलब इन्होंने ऑर्गेनिक एनालॉजी की अवधारणा दी है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑर्गेनिक एनालॉजी का मतलब हमारे शरीर में आंख, कान, नाक, मुंह है, सब बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो समाज के जितने भी अंग हैं, रिलीजन, फैमिली, कल्चर, सब मिलके समाज बनाते हैं। यानी समाज का भी विकास एक हमारे शरीर की तरह होता है। इसी को बोलते हैं सोशल डार्विनियनिज्म। ध्यान रखना, बराबर आएगा वर्ड। सामाजिक डार्विनवाद क्या है? जिस तरह से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, समाज भी इसी गति से धीरे धीरे एकाएक आज हम ऐसे स्टेज पे औद्योगिक समाज में नहीं आए। हम पहले, हमारे पूर्वज कभी क्या जंगली थे, फिर वो खेती करते थे, फिर वो आज हम कंप्यूटर और रिसर्च की जब बात करेंगे, ये इवोल्यूशन हुआ है ग्रेजुअल। इसी सोशल इवोल्यूशन को बोलते हैं सामाजिक डार्विनवाद, सोशल डार्विनियनिज्म। इज इट राइट? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये देख, ध्यान रखना, इससे रिलेट करना है। अब ये परिवर्तन को दिखाता है। अब ये टॉपिक्स हमारा हो गया, इसमें हम आपको क्वेश्चन भी दिखा दिए हैं, ये नहीं। अब आइए इसका दूसरा टॉपिक्स, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी।
है नहीं, है नहीं, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, हेडिंग लिखो। एज फार एज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? स्कोप रिफर्स टू कि सोशियोलॉजिकल अध्ययन का लिमिटेशन क्या है, कहां तक अध्ययन कर सकता है। समाज में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है नहीं, क्या सोशियोलॉजी हर एक चीज का अध्ययन करता है या कुछ चीजों का अध्ययन करता है? सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट समाज शास्त्रियों के दो ग्रुप हैं। एज फार एज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज कंसर्न, लिखो, एक दो लाइन पहले लिखो। As far as scope of sociology is concerned, as far as scope of sociology is concerned, there are two schools of thought in sociology. There are two schools of thought in sociology. फर्स्ट लिखो, पहला फॉर्मेलिस्टिक और स्पेशलिस्टिक स्कूल। फॉर्मेलिस्टिक और स्पेशलिस्टिक स्कूल, फॉर्मेलिस्टिक और स्पेशलिस्टिक स्कूल। ठीक है, अब अंडरलाइन कर दिए। फॉर्मेलिस्टिक और स्पेशलिस्टिक, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, लिखो जैसे मैं बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, सोशियोलॉजी स्टडीज द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, स्टडीज द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, forms of social relationship, full stop. There are following thinkers in this school. Following thinkers in this school. First, जॉर्ज सीमेल, इस स्कूल के लीडर्स हैं जॉर्ज सीमेल, ये नाम लिखना, जॉर्ज सीमेल। अब लिखना, अकॉर्डिंग टू हिम सोशियोलॉजी इज ए प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस। सोशियोलॉजी इज ए प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस which studies special forms of social relationship, special forms, FORMS, forms of social relationship। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ग्लास है, ये ग्लास है, ये ग्लास में क्या है? पानी। ये ग्लास का जो बाहर एरिया दिखता है ना, ये इसका फॉर्म है। गिलास हो सकता है इसे बड़ा भी हो, थोड़ा सा स्फेरिकल भी हो, इसकी चौड़ाई, ऐसा अलग अलग फॉर्म्स के गिलास होते हैं ना। तो ये बाहर से जो तुमको दिखता है ना, ये फॉर्म्स है। इसके अंदर जो हम पानी भी रख सकते हैं, दूध भी रख सकते हैं, वाइन भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, इसको बोलते हैं कंटेंट। ये हो गया इसका फॉर्म्स। अब जरा तुम कल्पना करो समाज। अब यहां समाज का जो चीज फॉर्म्स जो तुमको दिखता है, तो समाज में तो बहुत कुछ दिखता है, वो सारी चीजों का अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। अब कुछ ऐसी चीज हैं, स्पेशल चीज हैं, कुछ जैसे रिलीजन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, समाज के स्पेशल फॉर्म्स का अध्ययन करता है सोशियोलॉजी, जो बाहर से दिखता है।
इस फॉर्म्स के अंदर कंटेंट वो नहीं दिखेगा तुमको, प्रोसेस नहीं दिखेगा। तो वो चीज कहता है, जॉर्ज सीमेल का कहना है कि सोशियोलॉजी स्टडीज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सोशल रिलेशनशिप। हमारा रिलीजन, कल्चर, हमारा क्या कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम जो दिखाई देता है और जो स्पेशल है, संपूर्ण लोगों से जुड़े हुए, उन चीजों का अध्ययन करता है। दूसरा वो पैराग्राफ चेंज करो, अकॉर्डिंग टू टॉनिज, according to Tony, we can divide society into two parts. We can divide society into two parts. First, Gemeinschaft, ये वर्ड जर्मन भाषा का है, इसका मतलब होता है कम्युनिटी। जेमिन, Gemeinschaft, Gemeinschaft means community and Gesellschaft means association। ठीक है, ये याद रखना। टॉनीज ने Gemeinschaft और Gesellschaft का कॉन्सेप्ट दिया। मीन्स समाज में बहुत सारे कम्युनिटी होते हैं और बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं, संगठन होते हैं, समितियां होती हैं। तो सोशियोलॉजी का काम है इन कम्युनिटी और एसोसिएशन का अध्ययन करना, है नहीं? समझे नहीं? अब देखो, अब कम्युनिटी क्या होता है, सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या अंतर होता है, ये पूछो ना। कम्युनिटी और एसोसिएशन, कम्युनिटी हो गया कि किसी समाज में एक सर्टेन भौगोलिक एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में एक खास तरह के लोग रहते हैं, उनमें वी फीलिंग है, ये नहीं क्या है, वी फीलिंग है, वह एक दूसरे के साथ होमोजेनिटी रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक नहीं? तो ऐसे चीजों को हम कम्युनिटी बोलेंगे। उसमें कम्युनिटी में सबसे बड़ी चीज होता है वी फीलिंग, ये नहीं, सब में हम की भावना होती है, ठीक है? कम्युनिटी जैसे एग्जाम्पल में तुम ले लो कि बंगाल में रहने वाले गुजरात के लोग, वह यदि एक पर्टिकुलर एरिया में रहता हूं, उनकी अपनी अलग कल्चर हो, उनमें वी फीलिंग हो, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी, है नहीं? कम्युनिटी छोटा बड़ा बहुत तरह के हो सकता है नहीं? इंडिया में रहने वाले विदेशी मूल के लोग, इंग्लैंड के लोग, वो आपस में कहीं यदि एक जगह रहते हो एक सर्टेन भौगोलिक एरिया में, तो उसको कम्युनिटी बोलेंगे। यहां पर मतलब है कि हमारे समाज में धर्म के आधार पर में, कल्चर के आधार पर में, कई बार भाषा के आधार पर में अलग अलग कम्युनिटीज होते हैं, है नहीं? उन कम्युनिटीज का अध्ययन करता है। कम्युनिटीज एक तरह से इंडिविजुअल फोकस नहीं करता है, समाजशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन नहीं करता है, समाजशास्त्र कम्युनिटी का अध्ययन करता है। कम्युनिटी कलेक्टिव है, यानी एक व्यक्ति का उस पर पकड़ नहीं है, संपूर्ण एक ग्रुप ऑफ पीपल है। समाजशास्त्र ग्रुप का अध्ययन करता है नहीं? एसोसिएशन का मतलब ये हुआ, कॉलेज जैसे देखो, कॉलेज एक एसोसिएशन भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। कॉलेज क्या है? इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन की व्यवस्था, हम इसको देख नहीं सकते हैं रूल्स रेगुलेशन क्या है कॉलेज का। और एसोसिएशन का मतलब होता है यह एक कंक्रीट व्यवस्था है, जैसे कॉलेज में बिल्डिंग है, मकान है, टीचर्स हैं, बेंच हैं, डेस्क हैं, कॉपी हैं, किताब हैं, लाइब्रेरी हैं। इस सेंस में कॉलेज क्या है? एक एसोसिएशन है। लेकिन कॉलेज के जो रूल्स रेगुलेशन की व्यवस्था है, उस सेंस में कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन है, यानी कॉलेज एक एसोसिएशन भी है और एक इंस्टीट्यूशन है। तो समाज में बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो सकता है, वो पॉलिटिकल हो सकता है, ये राइट? तो बिल्कुल नहीं, इंडिविजुअल का स्टडी साइकोलॉजी में होता है। हाँ? वो अलग बात है,
व्यक्ति के रिलेशन को समझना, इंडिविजुअल, इसमें ये है कि व्यक्ति और समाज के रिलेशनशिप पे वो टॉपिक्स हैं। व्यक्ति, समाज के लिए व्यक्ति अनिवार्य होता है, लेकिन समाज ये और व्यक्ति के लिए समाज अनिवार्य होता है, ये एक इंटरप्रिटेशन है। लेकिन सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, एज ए विषय का जो अध्ययन क्षेत्र होता है वह ग्रुप होता है, इंडिविजुअल नहीं होता। इंडिविजुअल का अध्ययन साइकोलॉजी में होता है। नहीं नहीं, इसके लिए कोई नहीं है कि समाज शास्त्र कलेक्टिव चीजों का, समाज क्या है, समाज और एक समाज में क्या अंतर है बताओ। समाज तो पूरा विश्व ही एक समाज है, भारत एक समाज है। जब हम कहते हैं अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, ये एक समाज का एग्जाम्पल है। तो कलेक्टिव चीजों का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, और इंडिविजुअल बिहेवियर का अध्ययन करता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। वह कलेक्टिव का अध्ययन नहीं करता है। तो ध्यान रखना, सोशियोलॉजी का जो लक्ष्य है कम्युनिटी का अध्ययन करना, एसोसिएशन का अध्ययन करना, कलेक्टिविटी का अध्ययन, उनका ओवरऑल करता है, एक व्यक्ति को नहीं अध्ययन करता है। वेबर ने क्या कहा, वेबर का इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, तीसरा थिंकर्स लिखो इसमें, इस अप्रोच में इन्होंने कहा इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। मैक्स वेबर ने कहा, लिखो मैं जैसे बोलता हूं वैसे लिखो, अकॉर्डिंग टू वेबर सोशियोलॉजी में इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, ऐसे लिखना, सोशियोलॉजी मेक्स इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिव, ये वर्ड देखो ना लिखा हुआ, इंटरप्रेटिव, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर नहीं लिखना, सोशल एक्शन लिखना, ठीक है। इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है। अब ये सोशल एक्शन क्या है, वेबर का मानना था कि समाज शास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। सोशल एक्शन, सोशल एक्शन में दो तीन चीजें होती हैं, तभी जाके एक्शन सोशल होगा। पहला सिचुएशन, दूसरा एक्टर, और तीसरा मीनिंग, है नहीं। मीनिंगफुल एक्शन इज ए सोशल एक्शन। सिचुएशन, एक्टर एंड मीनिंग, मीनिंगफुल एक्शन। और इंटेंशन, इंटेंशन क्या है, यानी इंटेंशन यानी आप जो काम करते हो, मैं उस दिन भी बताया था कि सोशल एक्शन आप ग्रुप में करते हो, उसका एक मीनिंग होता है, इंटरेक्शन में करते हो, और वह मीनिंगफुल एक्शन जब आप करते हो तो वो सोशल है। अभी जो आप काम कर रहे हो ये क्या है, सोशल एक्शन है, एक मीनिंगफुल है, एक सिचुएशन है, क्लासरूम का सिचुएशन है। एक्शन तो आप करते हो, हर एक आदमी एक्शन करता है, लेकिन ऑल एक्शन सोशल नहीं है। कई बार हम ट्रेडिशनल एक्शन करते हैं, कई बार हम रेशनल एक्शन करते हैं, कई बार हम लीगल एक्शन करते हैं, वो सब सोशल एक्शन में आ गए। थ्योरी आएंगे थिंकर्स में इसकी, ये नहीं। तो इस ग्रुप में 8 थिंकर्स हुआ, जॉर्ज सीमेल, दूसरा टॉनिज, तीसरा वेबर। फॉर्मेलिस्टिक स्कूल में ध्यान रखना। तीसरा इसमें जो थिंकर्स है, चौथा हुआ है वॉन वीज, लिखो वॉन वीज, वॉन वीज। He differentiated between society and community. He differentiated between society and community on the forms of social relationship. On the forms of social relationship. He also elaborated associative and dissociative process of social interaction. He also elaborated associative
and dissociative process of social interaction. एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव को अंडरलाइन करो। अब ये क्या है? समाज में वॉनवीज का कहना है सोशल प्रोसेस का अध्ययन करता है। सोशल प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं, एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रोसेस रिफर्स टू कॉपरेशन, दूसरे व्यक्ति के साथ जब तुम जुड़ते हो, जैसे कॉपरेशन एक एसोसिएटिव प्रोसेस है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट एक डिसोसिएटिव प्रोसेस है। सोसाइटी में कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों पाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि व्यक्ति के साथ मेरा हमेशा कॉपरेशन हो, झगड़ा लड़ाई तनाव भी होता है, यानी कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट टुगेदर फाउंड इन द सोसाइटी। तो वॉनवीज का कहना है सोशियोलॉजी इन एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव प्रोसेस का अध्ययन करता है। सोशियोलॉजी समाज और कम्युनिटी के रिलेशनशिप को अध्ययन करता है, जैसे हम एसिमिलेशन, एक्लचरेशन, एकोमोडेशन, ये सब प्रोसेस हैं, सोशल प्रोसेस है। तो सोशियोलॉजी स्टडीज इन प्रोसेस का अध्ययन करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप यदि ऐसे समाज की कल्पना करोगे जहां झगड़ा लड़ाई नहीं होगा तो नहीं होगा। समाज में कॉन्फ्लिक्ट है ही, होगा ही। क्या कोई डाउट? ठीक है। और ये एसोसिएटिव समझा क्या हुआ? एसोसिएटिव प्रोसेस है जिससे हम लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, जुड़ते हैं। जैसे एकोमोडेशन कर रहे हो आप कहीं कल्चरल लेवल पे या धार्मिक लेवल पे या सोशल लेवल पे, तो दो अलग अलग कल्चर के व्यक्ति आपस में यदि एक जगह रहोगे तो क्या करोगे? थोड़ा बहुत दोनों के साथ एकोमोडेट करके चलना है। आज का जो समाज है, एसिमिलेशन में हम कई बार दूसरे कल्चर को, हम अपने कल्चर उसको ज्यादा हम फॉलो करने लगते हैं, लेकिन कई बार दूसरे कल्चरल ग्रुप के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, तनाव भी बढ़ जाता है। तो ये तनाव वाली जो चीजें हैं डिसोसिएट करता है, एक समूह से दूसरे समूह को अलग करता है। तो सोशियोलॉजी इन एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव दोनों प्रोसेस का अध्ययन करता है। ठीक है, इज इट राइट? अब आओ, अब इस स्कूल जो है ना, ये तो इन्होंने ये 3-4 थिंकर्स हो गए इसमें। अब इसका आलोचना करो, क्रिटिसिज्म का पॉइंट लिखो। इसका प्रॉब्लम क्या क्या है कि इस स्कूल को यदि माना जाए तो पहला लिखो, इट नैरो द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इसको मानने से सोशियोलॉजी का स्कोप छोटा हो जाता है। इट नैरो द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी लिखो, पहला पॉइंट लिखो। इट नैरो द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म सेपरेटेड फ्रॉम द कंक्रीट रिलेशन कैन बी स्टडीड। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया जो दिखता नहीं। हमारा तुम्हारा रिलेशन कैसा है कोई देख पाएगा? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कोई देख पाएगा? रिलेशनशिप को कोई देख नहीं पाएगा, है नहीं? और कंक्रीट जैसे बिल्डिंग, मकान, हम ये सब चीज देख सकते हैं, है नहीं? कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों को अलग किया जाए, ये नहीं हो पाता है। कॉन्सेप्शन ऑफ प्योर सोशियोलॉजी इज इम्प्रैक्टिकल। अब ये इस विचारधारा के हिसाब से प्योर सोशियोलॉजी की जो हम बात करेंगे वह इनको लगता है प्रैक्टिकल नहीं है, यानी साइंटिफिक चीजें जो है उतनी प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल है, प्योर सोशियोलॉजी हो नहीं सकता। सोशियोलॉजी एलोन डज नॉट स्टडी सोशल रिलेशनशिप। सामाजिक संबंधों को अध्ययन करने वाला सिर्फ सोशियोलॉजी ही नहीं है, और भी अदर साइंस है। जैसे पॉलिटिकल साइंस आदमी के पॉलिटिकल बिहेवियर का अध्ययन करता है, इकोनॉमिक्स आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, ज्योग्राफी भौगोलिक चीजों के, ये सब समाज का ही अध्ययन है। समाज का भौगोलिक चीजें कैसा है उसका अध्ययन करता है। तो ये है कि सिर्फ सोशियोलॉजी ही नहीं है जो मनुष्य के रिलेशनशिप को अध्ययन करता है, और भी साइंस हैं जो इनका अध्ययन करता है। इज इट राइट?
हम्म, समझा नहीं। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट, अब स्कोप देखो, जब इसको हम समाजशास्त्र एक विषय के रूप में, नैरो का मतलब हुआ छोटा दायरा। अब समाज इतनी बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है, इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक चीज का अध्ययन कर लें। और दूसरा बात, जो ये जो अप्रोच बताया गया है वह सोशियोलॉजी के दायरे को एक लिमिटेड छोटी सी एक क्षेत्र देता है अध्ययन करने का, ब्रॉड नहीं है। तो नैरो का मतलब हुआ कि समाज में इतने सारी चीजें, उसमें कुछ ही चीजों का समाजशास्त्र अध्ययन करता है, ठीक है कि नहीं। इस सेंस में सोशियोलॉजी का स्कोप छोटा हो जाता है, ठीक है। दिस इज ये पॉइंट ध्यान में रखना। हैं? नहीं, समाज का नहीं, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पे ध्यान रखना कि सोशियोलॉजी एक विषय बना। अब कोई विषय ऐसा होता है कि बहुत बड़ा ब्रॉड आकार लिए हुआ होता है। अब जैसे ये रूम देखो, इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्लासरूम है। आ, इसी को यदि सोशियोलॉजी कहे कि नहीं, इधर का हम अध्ययन नहीं करेंगे, इतना ही अध्ययन करेंगे, तो सोशियोलॉजी क्या कहता है, इनके सारे थिंकर्स के, कोई कहता है एक्शन का अध्ययन करता है, कोई कहता है फॉर्म्स का ही अध्ययन करता है। फॉर्म्स के अंदर कंटेंट है, जैसे मैं ग्लास का एग्जाम्पल दिया, तो ग्लास में पानी का अध्ययन नहीं करता है, बाहरी रूपों का अध्ययन करता है। समाज के अंदर रिलेशनशिप है, चीजें हैं, उसका अध्ययन तो करे। फॉर्म्स का मतलब होता है बाहरी रूप का अध्ययन करता है, या आंतरिक समाज को मजबूत करने वाले जो चीजें हैं वह है रिलेशनशिप। वह रिलेशनशिप एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, वह कौन सी फोर्स है, इन चीजों पे फोकस कम करता है। हाँ 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 फिर से बोलो एक बार। हाँ हाँ हाँ, उसमें आगे स्कूल पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है नहीं। सेकंड जो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना, उससे पता चलेगा। इसमें क्या है कि सोशियोलॉजी को बड़े करने का जो दूसरा स्कूल है ना, अभी आगे वाला जो हम आएंगे सिंथेटिक स्कूल ना, वह सारे समाज की चीजों को इकट्ठा करके सब सिंथेसाइज करके लिए है। ये कहा कि स्पेशल चीजों का अध्ययन करता है, इसका नाम स्पेशलिस्टिक स्कूल पड़ा, क्योंकि फॉर्म्स का अध्ययन करना पहली बात। अब फॉर्म में भी सभी फॉर्म का अध्ययन नहीं करता है, स्पेशल फॉर्म का अध्ययन करता है। बात समझ रहे हो। अब स्पेशल यदि हो गया तो जनरल नहीं ना हुआ, वो कहेगा कि नहीं, अगला वाला स्कूल कहेगा कि ये कहा कि स्पेशल मतलब, अब मान लो कि यहाँ पे इतने बच्चे हो, अब ये स्कूल कहता है कि हम ये स्पेशल बच्चों का अध्ययन करते हैं, इसे समझो, मतलब दो चार बच्चों का हम अध्ययन करेंगे, है नहीं, और उसके फॉर्म्स का बाहरी रूप का अध्ययन करेंगे, उसके अंदर का अध्ययन नहीं करेंगे। इसी के अपोजिट में दूसरा स्कूल का जो थिंकर्स है वो कहेगा नहीं, सोशियोलॉजी इस सब बच्चों का अध्ययन करता है, सब फॉर्म और सबको सिंथेसाइज करके अध्ययन करता है। तो वो जब पढ़ोगे ना, उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या है। हाँ हाँ, कभी नहीं हो सकता। कहा तो उन्होंने दावा किया, लेकिन नहीं हो सकता। पॉजिटिविज्म सोशियोलॉजी के जो अगस्त कॉम्ट ने दिया, बहुत हद तक ठीक है, 60% चीजों को हम वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविज्म में देखना कि बहुत सारे ऐसी चीजें जहां एक्सपेरिमेंटेशन यदि नहीं है, विज्ञान बनने के लिए सबसे बड़ी चीज होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। समाज शास्त्र में एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज नहीं होता है, पहला तो ड्रॉबैक ये है। हम आगे साइंस वाला सेगमेंट में ये चीज आएगा। तो समाज शास्त्र को फिजिक्स की तरह विज्ञान बनाना ये बिल्कुल 100% ठीक नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन साइंस है, ये सोसाइटी है। सोसाइटी बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, रिलेशनशिप में चेंज है, चेंजिंग फिनोमेना का लेबोरेटरी में क्या है, लोहे मैटर का एक फिक्स्ड है प्रॉपर्टीज, लेबोरेटरी में कंडीशन करके हम अध्ययन कर सकते हैं,
लेकिन मनुष्य को, पूरे समाज को लेबोरेटरी में लाना और उसको कंट्रोल करना नॉट पॉसिबल। तो पहला ड्रॉबैक है कि भी एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं यूज हो रहा है। अगस्त कॉम्ट ने तो कोशिश किया, लेकिन वह बिल्कुल आगे आके थिंकर्स ने कहा है, इसकी आलोचना किया है कि सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस नॉट ए नेचुरल साइंस। साइंस है, बहुत सारे साइंस के पैरामीटर को फॉलो करते हैं, लेकिन ये प्योर साइंस जो कहेंगे फिजिक्स की तरह 100% ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। मैथमेटिक्स में क्या है, 100% ऑब्जेक्टिव है। फिजिक्स में क्या है, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन सोशियोलॉजी में वैसा नहीं कर सकते हैं, किसी चीज को 100% ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर नहीं किया जा सकता। आगे आएगा, क्लियर करोगे जब हम आगे, अभी ग्रेजुअली चैप्टर में आएगा ना, तो इस ऑब्जेक्टिविटी वाला चैप्टर अलग है, वहां डिस्कस करेंगे, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब आओ, वॉन लिखा क्रिटिसिज्म, ये पॉइंट लिख लिया, लिखा, ठीक है। अब आओ, ये स्कूल देखो, दूसरा लिखो सिंथेटिक स्कूल, सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल, सिंथेटिक स्कूल का जो है, इस सिंथेसाइज ऑल सोशल साइंसेस, हर एक सोशल साइंस को कंबाइंड रूप से देखता है नहीं, यानी सोसाइटी को भी ये कंबाइंड रूप से देखता है। सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हैं, हर एक चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से देखता है, इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से जुड़े हैं, स्पेशल और नॉन स्पेशल नहीं है इसमें। जो सारे जो सोशल चीजें होते हैं उन चीजों को फोकस किया। इसमें पहला थिंकर है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम, ये पॉइंट लिख लेना, इमाइल दुर्खिम ने ये 3 कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, देखो, पहला दिया सोशल मॉर्फोलॉजी, मींस ज्योग्राफिकल बेसिस। दूसरा दिया सोशल फिजियोलॉजी, मींस रिलीजन और लॉ। तीसरा दिया जनरल सोशियोलॉजी, इसमें जनरल कैरेक्टर ऑफ लॉ आ जाएगी। ठीक है नहीं, समाजशास्त्र, ये 3 चीजें हैं। ठीक है जी, राइट। अब देखो, ये सोशल मॉर्फोलॉजी क्या हुआ, ज्योग्राफिकल बेसिस, मतलब समाज, आज यदि हम हैं, हमारा यदि ज्योग्राफिकल कंडीशन अपोजिट हो जाए तो क्या हमारा समाज सरवाइव कर पाएगा? नहीं। हमारा रेनफॉल, टेम्परेचर, एग्रीकल्चर, नदी नाली, कहीं ना कहीं सब सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनका कहना है कि सोशल मॉर्फोलॉजी भी एक तरह का विषय होना चाहिए। ये ज्योग्राफिकल बेसिस है, आदमी के समाज जहां कहीं भी सिविलाइजेशन का विकास हुआ, यानी सोसाइटी का विकास हुआ, वहां मनुष्य के रहने के लिए भौगोलिक ज्योग्राफिकल कंडीशन अनुकूल रहा, तभी वहां समाज बना। और दुनिया का रेगिस्तान में जाके आदमी क्यों नहीं बस जाता है? क्योंकि वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सहारा रेगिस्तान क्यों नहीं जाता है? तो पहला इसको बोलते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी, समाज के जीने के लिए परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति। दूसरा है सोशल फिजियोलॉजी, हर एक समाज का ये स्ट्रक्चर होता है कि समाज में रिलीजन होता है, समाज में मोरालिटी होती है और समाज के नियम होते हैं, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। जनरल सोशियोलॉजी में आ जाएगा क्या कि जनरल कैरेक्टर, समाज के जनरल लॉ। ठीक है नहीं, जनरल लॉ, समाज में बहुत सारे नियम होते हैं, कल्चरल लॉ, धार्मिक लॉ, ये सब लॉ होते हैं। तो हर एक समाज को रेगुलेट करने के लिए लॉ जो होता है वो आ जाएंगे जनरल सोशियोलॉजी में, नहीं? तो ये 3 चीज कहता है कि सोशियोलॉजी के अध्ययन में ये चीजें होनी चाहिए।
ठीक है। दूसरा थिंकर आ गया हॉबहाउस, लिखो। हॉबहाउस कहता है सोशियोलॉजी सिंथेसाइज न्यूमरस सोशल साइंस थ्री टास्क। इन्होंने कहता है कि विभिन्न जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं सबको कंबाइंड कर देता है सोशियोलॉजी। समाज के लिए, हर एक समाज के लिए इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक्स का भी अध्ययन करता है। उनके पॉलिटिकल सिस्टम है, इस सेंस में सोशियोलॉजी पॉलिटिकल सिस्टम का भी अध्ययन करता है। समाज के भौगोलिक दशाओं का भी अध्ययन करता है। तो न्यूमरस हिस्ट्री भी समाज से जुड़ा हुआ है, तो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी का विकास हुआ। सिंथेसाइज का मतलब हुआ कंबाइंड, सभी सामाजिक विज्ञानों को कंबाइंड रूप जो है वही सोशियोलॉजी अध्ययन करता है। अब ये क्या कहता है कि सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना उनके तीन मेजर टास्क हैं। पहला, समाज के पर्टिकुलर पार्ट्स का अध्ययन करो आप। दूसरा, इंटरकनेक्टेड बिटवीन पार्ट्स, विभिन्न पार्ट समाज का, जैसे धर्म है, धर्म का एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है और धर्म का पॉलिटिकल सिस्टम के साथ क्या रिलेशन है। हमारे यहां पार्ट्स क्या है, रिलीजन एक पार्ट्स है और पॉलिटिकल सिस्टम समाज का दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब पॉलिटिकल सिस्टम और रिलीजन के बीच क्या रिलेशनशिप है ये सोशियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर करेगा, उनका काम है करना, ठीक नहीं। फिर ये कहते हैं इंटरप्रेट सोशल लाइफ एंड होल, सोशल लाइफ को इंटीग्रेटेड तरीके से, संपूर्ण सामाजिक जीवन क्या है, भारत का सामाजिक जीवन क्या है, इनको पूरी सामाजिक जीवन को इंटीग्रेटेड तरीके से अध्ययन करता है सोशियोलॉजी। आदमी के कल्चर को, रिलीजन को, उनके ट्रेडिशन को, उनके मूड्स को, सारे चीजों का अध्ययन करता है समाज साथ। इस सेंस में सोशियोलॉजी का स्कोप बड़ा हो गया, ब्रॉड हो गया, छोटा नहीं हुआ, है नहीं। अब ये पॉइंट करता है इंटरप्रेट सोशल लाइफ एज ए होल, मनुष्य का सामाजिक जीवन में ट्रेडिशन है, परंपरा है, लॉ है, धर्म है, कल्चर है, भाषा है, इन सबको इंटीग्रेटेड तरीके से अध्ययन करता है। तो हॉबहाउस इस स्कूल के लीडर्स माने जाते हैं। हॉबहाउस का ये विचार है। अब आओ, तीसरा थिंकर है पीटरिंग सोरोकिन। कौन है? सोरोकिन। तीसरा थिंकर का नाम है सोरोकिन। इन्होंने तीन बातें कही कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, पहला ये क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिनोमेना। वही बात इन्होंने कहा कि समाज में एक चीज तो नहीं है, अब इकोनॉमिक चीजें हैं, कल्चर है, धर्म है, तो कल्चर का धर्म से क्या रिलेशन है, लिखो, फोटो नहीं खींचना है, सबको लिखना है, ये नहीं। मतलब समाज का अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स के बीच इंटरकनेक्शन की उन्होंने बात किया। इन्होंने बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ, रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, धर्म का इकोनॉमी से क्या संबंध, इकोनॉमी का कल्चर के साथ क्या संबंध है, ये हो गया रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप। अच्छा अच्छा, ठीक है, इधर आइए। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड नॉन सोशल, ठीक है। सोशल और नॉन सोशल क्या हुआ, सोशल जो होता है ना समाज के लिए जो सामाजिक चीजें हैं, नॉन सोशल का मतलब है वो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ऐसे है समाज में बहुत सारे कस्टम ट्रेडिशन। तो सोशल और नॉन सोशल के बीच डिफरेंशिएशन, जनरल फीचर ऑफ सोशल फिनोमेना, समाज में जितने भी सोशल फिनोमेना आपको दिख रहे हैं, जितने भी फिनोमेना का जो मतलब है रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिकल, ट्राइबल, विलेज, गांव, ऑल आर सोशल फिनोमेना। इस सोशल फिनोमेना का जनरल बातें क्या है, इन जनरल चीजों का अध्ययन करता है, ठीक है।
सोशियोलॉजी सोशल फिनोमेना के, ऑल सोशल फिनोमेना को जनरली ये एनालाइज करता है, डिस्कस करता है और उसके ऊपर में अपनी व्यू देता है। इसी तरह का जो व्यू है कार्ल मानहीम और जिन्सबर्ग ने दिया, ठीक है। सिमिलर व्यूज वेयर गिवन बाय कार्ल, मानी सिंथेटिक स्कूल का जो व्यू है वह कार्ल मानहीम और जिन्सबर्ग भी इस स्कूल में आते हैं, उन लोगों ने भी इसी तरह की विचारधारा को दिया, ठीक है। अब लिखो, कंक्लूजन लिखो। दो स्कूल अलग अलग हो गए, ठीक है। अब ये लिखो, एज फार एज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज कंसर्न देयर आर डिफरेंट एजम्पशन। अब हम इसको समअप करते हैं, दोनों स्कूल के थिंकर्स को मैंने देख लिया, उनके विचारों। जो सिंथेटिक स्कूल है उसको इतना समझ लो, ये कहता है कि सोशियोलॉजी समाज को इंटीग्रेटेड तरीके से अध्ययन करता है, ब्रॉड तरीके से अध्ययन करता है और हर एक पक्ष को इंटरकनेक्टेड तरीके से अध्ययन करता है। इस सेंस में जो सेकेंड स्कूल है वह समाज शास्त्र के स्कोप को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। पहला वाला जो स्कूल है वह स्पेशल की बात करता है, इसीलिए पहले वाले स्कूल का, फॉर्मल स्कूल का जो स्कोप है वह छोटा है और जो दूसरा स्कूल है उसका स्कोप बड़ा, यानी समाज शास्त्र को बड़ा दायरा देता है अध्ययन करने का। अब वेबर व्यूज स्कोप फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्शन। अब वेबर ने सोशियोलॉजी के स्कोप को सोशल एक्शन के रूप में देखा है। अब ये हम वेबर जब थिंकर्स पढ़ाएंगे तब सोशल एक्शन के अलग अलग फॉर्म्स को बोला है, ट्रेडिशनल एक्शन, रिक्रेशनल एक्शन, वोल्टेशनल एक्शन। तो वेबर का कहना है कि सोशल जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है वह सोशल एक्शन के ऊपर में फोकस्ड है, या नहीं। इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी सोशल एक्शन का अध्ययन करता है, ठीक है नहीं। दूसरा दुर्खिम ने क्या कहा, सोशियोलॉजी सोशल फैक्ट्स का अध्ययन कर। लिखते रहो वन लाइनर नोट्स, ये वर्ड जहां कहीं भी आवे, यदि सोशल एक्शन कहीं भी देखो तो उसको वेबर से कनेक्ट करो, सोशल फैक्ट्स कहीं भी देखो तो उसको दुर्खिम से कनेक्ट करो, है नहीं। लिखो, दुर्खिम का मानना है कि व्यूज इट एज सोशल फैक्ट्स, ठीक है। Anthropologist Redkey Brown argue that sociology subject matter lies in a structure and pattern of social relationship. ये लाइन लिखो, interrelation which should be studied by field work। ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, रेडक्ली ब्राउन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वह है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, विभिन्न रिलेशनशिप के बीच में इंटरकनेक्शन क्या है। यस, विभिन्न रिलेशनशिप के बीच में स्ट्रक्चर क्या है, इंटरकनेक्शन क्या है। और इन्होंने फील्ड वर्क, समझते हो क्या होता है फील्ड वर्क? क्या होता है? जब कोई समाजशास्त्री या मानव शास्त्री किसी जनजातियों के गांव में, घर में जाके अध्ययन करता है तो उसको बोलते हैं फील्ड वर्क। फील्ड वर्क का मतलब लोगों के बीच जाके अध्ययन करना।
ठीक है। अब आओ, अब अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो है ये अकॉर्डिंग क्या है, कार्ल मार्क्स कहता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी डायनामिक्स ऑफ फोर्सेस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, डायनामिक्स ऑफ फोर्सेस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जब मार्क्स पढ़ोगे तो ये रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन बताए, प्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मींस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन होता है। आज हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन है। जब हम खेती से इंडस्ट्रियल मोड में शिफ्ट हुए तो सिर्फ मोड ही नहीं बदला, आदमी का रिलेशनशिप भी बदल गया। काम आज हम यदि 100 वर्ष के बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जाएंगे तो काम और काम के साथ लोगों का रिलेशनशिप में भी परिवर्तन आता है। इसको बोलते हैं हम रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, यानी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो होता है यानी वह चीज जिससे प्रोडक्शन होता है, और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है कि काम के दौरान जो रिलेशनशिप बनते हैं वो समाजशास्त्र इन्हीं रिलेशनशिप का अध्ययन करता है। तीन वर्ड समझो, ये तो जो अभी आगे पढ़ोगे बढ़िया से, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मींस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, कार्ल मार्क्स ने दिए। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मींस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, तीन टर्म है। व्हाट इज द मोड ऑफ प्रोडक्शन? Mode of production refers to the manners in which production is organized. For example, आज से 100 वर्ष पहले फ्यूडल सोसाइटी था, एग्रीकल्चर समाज था, तो वहां प्रोडक्शन क्या होता था, सभी लोग, प्रोडक्शन का मतलब है खेत में जाकर के काम करना और खेत में पैदावार बढ़ाना, खेती से रिलेटेड मोड था। लेकिन आज वो आदमी, एक आदमी यदि कंप्यूटर, लैपटॉप और इंजीनियरिंग ये सब काम करता है, आज आ गया इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। बिना कैपिटल पूंजी के कोई प्रोडक्शन संभव नहीं है। पहले एग्रीकल्चरल मोड ऑफ प्रोडक्शन से हम शिफ्ट हो गए इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन में। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है ना तो दो चीज और चेंज होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। व्हेनेवर वी वर इन द एग्रीकल्चर मोड ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स क्या था, लैंड था, जमीन, और उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे टेक्नोलॉजी और मजदूरी करने वाले लोग, काम करने वाले लोग, वो मीन्स था। और रिलेशन क्या था कि मजदूर के बीच और जमींदार के बीच कैसा रिलेशन है, प्रोडक्शन के दौरान किस तरह के संबंध बनते हैं, मालिक होता है, लेबर होता है, तो मालिक और लेबर का संबंध था। आज जब हम कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में आए हैं तो आज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैपिटल। बिना कैपिटल के प्रोडक्शन ये मींस हो गया। और रिलेशन क्या हो गया, लेबर के बीच और इंडस्ट्रियल जो मालिक के बीच कैसा रिलेशन है, और वो एक ओवरऑल कहीं ना कहीं से जो काम करने वाले इंटायर लोग हैं उनके बीच इंटरडिपेंडेंसी है, सब म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करते हैं, तब जाकर के अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, और सब में कहीं ना कहीं एक बड़ा सर्जरी होता है तो अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। तो जैसे जैसे ये मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी बदलता है और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन भी बदलता है। हाँ, मतलब पूरे सोसाइटी है, सब में है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, ये तीनों कॉन्सेप्ट है, ये तीनों कॉन्सेप्ट मतलब हर एक सोसाइटी में लागू होता है, सिर्फ एसी में नहीं लागू होता है। उन्होंने 3-4 प्रकार का मोड, वो कार्ल मार्क्स में हम पढ़ाएंगे तुमको, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। और इसके बाद एक और फ्यूचर में कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो कभी आया नहीं, भविष्यवाणी किए थे, वो हम मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग चैप्टर थिंकर्स में पढ़ाएंगे। वेबर ने फोकस किया सोशल एक्शन। अब सोशल एक्शन कहा कि सोशल एक्शन को इन्होंने बंद दिया। पार्सन्स ने कहा सोशल सिस्टम की बात की है कि सोशियोलॉजी सोशल सिस्टम का अध्ययन करता है। कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किए,
एक स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। कांट ने सोशियोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक क्या है कि समाज के कांस्टेंट रियलिटी, और डायनेमिक्स का मतलब चेंजिंग रियलिटीज, ये दोनों का अध्ययन करता है। अब समाज में कांस्टेंट कुछ चीजें ऐसी हो ना, हम सारा दुनिया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन चला जाता है, धर्म कभी खत्म होगा हैं? कल्चर कभी खत्म होगा? नहीं होगा ना जी। तो जो चीज स्टेबल है उसको बोलते हैं स्टैटिक्स, जो चीज चेंजिंग लिए हुआ है उसको बोलेंगे डायनेमिक्स। Who gave the concept of statics and dynamic? अगस्ट कॉम्ट। तो उनके अनुसार सोशियोलॉजी स्टैटिक्स पार्ट का भी अध्ययन करता है और डायनेमिक पार्ट का भी अध्ययन करता है। हर्बर्ट स्पेंसर परसीव सोशियोलॉजी एज एन ऑर्गेनिज्म, सोशियोलॉजी को ऑर्गेनिज्म की तरह मानता है। अभी मैं ऑर्गेनिक एनालॉजी बोला था। समाज शास्त्र जैसे मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में हाथ पांव नाक कान ये हैं, सब एक दूसरे से जुड़ के अपना अपना अलग अलग काम करते हैं और सब बॉडी से अटैच हैं। तभी हाथ को यदि अलग कर दिया जाए, आंख को अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? आंख का कोई मतलब नहीं है, बॉडी क्रिपल्ड हो जाएगा। उसी तरह समाज में, समाज के हाथ पांव क्या है? धर्म, कल्चर, इकोनॉमिक सिस्टम, ये सब समाज के पार्ट्स हैं। ये सब अपने अपने जब काम करते हैं ना, तब पूरा सोसाइटी का सिस्टम मेंटेन होता है। ये सब मिलकर के, जैसे फूल का माला, अलग अलग फूल के माले हैं, अलग अलग हमारे बॉडी के पार्ट हैं। माला कैसे बन? जब सारे फूल को एक आकृति देते हो, तो वैसे ही समाज होता है। समाज में फैमिली है, रिलीजन है, कल्चर है, इकोनॉमिक सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है, सब अपना अपना काम करते हैं और इन सब को इंटीग्रेटेड तरीके से ये समाज का निर्माण करते हैं और सोशियोलॉजी इन सब का अध्ययन करता है। ये राइट? तो ये जो है ना, इस सेंस में क्या कहता है, ये इन्होंने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को ये बढ़ा दिया। ठीक है। अब 1880 के बाद क्या हुआ? 1880 की बात है। 1880 के बाद सोशियोलॉजी ने क्या किया? लिखते रहो, पॉइंट सब लिखते रहना, ये सब काम आएगा, मिलेगा नहीं कहीं। आफ्टर 1880 सोशियोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप। समाज शास्त्र का सबसे पहले यूरोप में ये एस्टैब्लिश हुआ। यूरोप में हियर फॉर्मल एंड सिंथेटिक स्कूल डेवलप। ये जो स्कूल जो बताए हैं दोनों, ये यूरोप में डेवलप हुआ। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव वी आर चैलेंज्ड बाय द राइज ऑफ नाजिज्म। मार्क्स का जो थ्योरी था ना समाज शास्त्र में, अभी कार्ल मार्क्स का विचारधारा जब पढ़ोगे, एक पर्सपेक्टिव है मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। कार्ल मार्क्स के विचारों को लेकर के बहुत सारे थिंकर्स जो मार्क्सवादी विचारधारा को प्रमोट किए थे, वो उसने नाजीवाद आ गया, फासिज्म आ गया एंड करप्शन इन सोवियत यूनियन। इस लोगों से पता चला कि ये मार्क्सियन विचारधारा अब नहीं चलेगा। तानाशाही आ गया, नाजी जर्मनी, ये सब बड़े बड़े ये तानाशाह थे, फासिज्म, फासीवाद, ये सब ने मार्क्सवाद को पीछे छोड़ दिए। इक्वालिटी नहीं, तानाशाही चला पूरा दुनिया में, है नहीं? तो समाज में जो ऐसे तानाशाह, नाजीवाद, आज भी हिटलर और ये सब जो नेपोलियन बोनापार्ट को आज भी जो है, किम जोंग का नाम सुने हो? नॉर्थ कोरिया का जो है, कितना खतरनाक तानाशाही चला रहा है। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ? तानाशाही है ना। म्यांमार में क्या हुआ? म्यांमार की घटना मालूम होगा, डेमोक्रेटिकली सरकार को हटा के कब्जा कर लिया। नियो मार्क्सिस्ट। अब मार्क्सिस्ट में भी एक ग्रुप आया, फ्रैंकफर्ट स्कूल, इसका नाम है फ्रैंकफर्ट स्कूल, और क्रिटिकल स्कूल भी इसे हम कहते हैं। इसके जो थिंकर्स हैं हॉर्खहाइमर एंड ओडोर्नो, ये दो बड़े थिंकर्स हैं नव नियो मार्क्सवादी की। इन्होंने सोशियोलॉजी में कल्चरल पर्सपेक्टिव को ऐड किया। क्या ऐड किया? यानी कल्चर इनटू मार्क्सिस्ट थॉट। इन्होंने कहा, मार्क्सिस्ट ने थॉट में बोला कि कल्चर का अध्ययन, कल्चरल चीजों को लोग, सोसाइटी का कल्चर को मार्क्स ने कभी नहीं कल्चरल चीजों को ला, वो इकोनॉमी को हमेशा फोकस करते थे।
लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी चीजों में कल्चर का बहुत बड़ा योगदान है, धर्म का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब नियो मार्क्सिस्ट ने, हॉर्खहाइमर और एडोर्नो, इन लोगों ने कल्चरल पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाया, थॉट एंड ऑल्सो इंक्लूडेड कल्चरल स्टडीज, कि सोशियोलॉजी के स्कोप में कल्चर को जोड़ दिया कि कल्चर बहुत बड़ी चीज होती है समाज का, है नहीं। जबकि मार्क्सवादी जो चिंतक थे कल्चर को नहीं मानते थे, बोलता था कल्चर इकोनॉमी से डिसाइड होता है, हर एक चीज में इकोनॉमी ले आता था। तो यहां से थोड़ा सा जो नया इसको बढ़ाया, नियो मार्क्सिस्ट थिंकर्स जो है, बोला कि कल्चरल जो चीजें हैं उनका अध्ययन स्कोप के रूप में किया जाए। अच्छा लिखो 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 लिखो, ये बैच ऐसा है, आराम आराम से लिखो, हम लोग का लंबा जर्नी है, लंबे रेस के घोड़े हो तुम लोग, अभी लंबा चलेगा, पूरा ठंडा निकल जाएगा तुम लोग कोर्स होती होती। तैयार हो ना, हैं? पीछे मुड़ना नहीं है, अब स्टार्ट हो गया है तो जान लो करना है अच्छे से। लिखो, आराम आराम से लिखो, सारा पॉइंट लिखो, कलम चलाओ, मुंह बंद रखो, कलम चलाओ। अभी तुम लोगों का डिबेट करने वाला स्टेज नहीं है, अभी जैसे बता रहा हूं लिखते रहो, लिखते रहो, मजबूत बनो। अभी बोलो, बहस कम करो, लिखो ज्यादा। सारे चीज नहीं लिखने, जो डिस्क्रिप्टिव ज्यादा होगा तो मैं खुद मना कर दूंगा, लेकिन पॉइंट फॉर्मेट में जो चीजें हैं उसको लिख लोगे तो आगे तुमको आंसर डिजाइन करने में रेफरेंस के तौर पे ये सब काम आएगा। ठीक है, आओ हो गया। अब ये देखो क्या, अच्छा वो छूट गया फिर तुम्हारा, लो, अच्छा इसके आगे वाला नहीं, ये हो, ये ना लिखो। अच्छा ठीक है, हो गया, आपका हो गया। अब ये देखो, ये पार्ट 1940 ऑनवर्ड्स दो कॉन्सेप्ट आया, माइक्रो एंड मैक्रो व्यूज। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, वेयर कंबाइंड बाय पार्सन्स, टेलकोट पार्सन्स ने छोटे, दोनों स्कूल के विचारों को, छोटे बड़े हर एक चीजों को कंबाइन करने का प्रयास किया। कंबाइंड द स्टडी, इन्होंने सोशल एक्शन पे लिखा और सोशल सिस्टम पे लिखा। टेलकोट पार्सन एज ए थिंकर पढ़ना भी है, इन्होंने सिस्टम थ्योरी दी है। इन्होंने एक्शन को भी, वेबर और पार्सन्स ने एक्शन के ऊपर में लिखा है, सोशल एक्शन के ऊपर में लिखा है। पार्सन्स एक अमेरिकन सोशलॉजिस्ट थे, ये आधुनिक अभी की टाइम की बात है। इसके साथ साथ एक और थिंकर आया, मर्टन, आर के मर्टन। ही कंबाइंड, मर्टन ने साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट इन द थ्योरी ऑफ एनोमी, यानी समाज के अध्ययन में, एनोमी में साइकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को सोशल स्ट्रक्चर पे बल दिए, है नहीं। ये दो, टेलकोट पार्सन्स और आर के मर्टन, बोथ आर मॉडर्न अमेरिकन सोशलॉजिस्ट, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थिंकर्स हैं, है नहीं। इन्होंने कहा कि सोशलॉजी सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर पे बल देता है, और इन्होंने साइकोलॉजिकल, मर्टन ने साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से सोशल स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास किया, और पार्सन्स ने सोशल सिस्टम थ्योरी दिया, और सोशल सिस्टम के तहत उन्होंने पूरे समाज की चीजों को कंबाइन करने की कोशिश की है।
1940 में, यहां से समझो, दो अमेरिकन समाजशास्त्री आते हैं, एक का नाम होता है पार्सन्स, दूसरे का नाम होता है मर्टन। ठीक है, जो पार्सन्स है, अभी तुम पढ़े नहीं हो, आगे हम थिंकर्स में ये पढ़ना भी है। उन्होंने सोशल सिस्टम दिया। बॉडी क्या है तुम्हारा? बॉडी एक सिस्टम है। इस सिस्टम के सब सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्लैंड्यूलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये छोटे छोटे सिस्टम मिला के एक बड़ा सिस्टम मिलाता है कि बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सिस्टम। उसी तरह से समाज, पूरा समाज एक सिस्टम है। इसके अंदर में इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, अलग अलग छोटे छोटे सब सिस्टम है। यानी इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से एक समाज का विश्लेषण किया, अमेरिका का समाजशास्त्री। दूसरा आया इसी में मर्टन, आर.के. मर्टन ने क्या किया कि एनॉमी, वर्ड का मतलब होता है, एनॉमी इनका थ्योरी है, नॉर्मलेसनेस। समाज में जब डिसऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसको हम एनॉमी बोलते हैं। एनॉमी मींस डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है नहीं। इन्होंने, आर.के. मर्टन ने रेफरेंस ग्रुप का थ्योरी दिया, है नहीं। आगे हम पढ़ेंगे जिस थिंकर, आगे वाला पार्ट में सिलेबस में रेफरेंस ग्रुप का, उन्होंने, आर.के. मर्टन ने एनॉमी का सिद्धांत दिया, डेवियंस का थ्योरी दिया, इन्होंने विचरण का सिद्धांत दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मर्टन का सिद्धांत हम पढ़ेंगे, इसका 3-4 टॉपिक्स पढ़ना है जो थिंकर्स में जब हम आएंगे तब। तो मर्टन, और मर्टन का जो सिद्धांत है वह मनोविज्ञान से ज्यादा प्रेरित है। समाज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास किया, साइकोलॉजिकल तरीके से समाज का विश्लेषण किया। ठीक है, देखो जब आएगा ना, जब तुमको थिंकर्स पढ़ लोगे जब तुम, तो ये सब चीज छोटा छोटा अभी नहीं पढ़े हो, ये आगे जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे तो ये चीज रिलेट हो जाएगा। अभी लिख लो, है नहीं, अभी सिंपल समझ लो, ये सब बहुत बड़ा बड़ा टर्म है, जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। 1960 में फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट, फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी इमर्ज। फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी क्या होता है? महिला के चीजों को लेकर के आया, जो महिला की बात करे। फेमिनिस्ट मूवमेंट, महिला के लिए सोशियोलॉजी में, समाज है तो महिला तो 50% जनसंख्या है, तो बहुत सारे महिला सोशियोलॉजी, फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी इमर्ज व्हिच एम्फेसाइज सेंट्रलिटी ऑफ जेंडर इन सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन में, सोशल चेंज में जेंडर का बहुत बड़ा रोल है। जेंडर, जेंडर समझते हो क्या होता है? मतलब जेंडर का मतलब होता है कि कल्चरल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो पूरे दुनिया में महिलाओं को सारा अधिकार नहीं दिए, सोशल राइट नहीं दिए, इकोनॉमिक राइट नहीं दिए, पॉलिटिकल राइट नहीं दिए, फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए। तो ये सारे अप्रोच कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे। सोशल चेंज में जेंडर इक्वलिटी, समाज में परिवर्तन लाओ, मतलब महिलाओं को जो है, महिला की बात करेगा। फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी महिला की बात करती है। इनका एक ही बात मान लो, जब भी फेमिनिस्ट वर्ड आए, फेमिनिस्ट मूवमेंट, या तो वो महिला की वकालत करेगा, ठीक है नहीं, इतना ध्यान रखना। सोशल रियलिटी इज व्यू डिफरेंट बाय टू सेक्सेस। अब टू सेक्सेस का मतलब है महिला और पुरुष। महिला को देखने का नजरिया और पुरुष को देखने का नजरिया अलग होता है। यानी समाज के चीजों को, परिवार को, विवाह को, धर्म को पुरुष अपने तरीके से देखता है, महिला अपने तरीके से देखता है। तो अब यहां पर में 60 के बाद क्या हुआ, फेमिनिस्ट मूवमेंट आया दुनिया में, धीरे धीरे अमेरिका में, भारत में, और फिर समाज में आज देख लो फेमिनिस्ट मूवमेंट के कारण महिला कितना तीव्र गति से अधिकार को ले रहे हैं, राइट को लेकर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां तक ध्यान रखना कि 40 तक आते आते अब स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इनसे ज्यादा बड़ा हो गया। इट लार्जली, ये जो पॉइंट लिखाए हैं ना, इसके बाद एक लाइन जरूर लिख लेना, ऑल दीज कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ये सभी समाज शास्त्र के स्कोप को बढ़ा देता है, एक लाइन लिख लो मात्र, ठीक है।
लिखें। मॉडर्निज्म, जे फोकॉट, मॉडर्निज्म। थोड़ा सा है, 2 लाइन और लिख दो। चलो कल करना, कल करेंगे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।